We are going to do a new topic today, and it is known as algebraic identities or some special products or expansions. अलग अलग बुक्स में इसका अलग अलग नाम है. तो I wanted all my 8th class students to be part of it because this is a common chapter. Some special products or expansions or algebraic identities. That is the name of the topic. ठीक है? I'm not sure how many of you are aware about these identities, but you will come to know. So I'm going to write some formulae, some identities with red ink. Just let me know if you know them or not. X plus A into X plus B is equal to x square plus x bracket A plus B plus AB. Do you know this identity, everyone? Or is it new for you? If it is new for you, then it is mandatory that you have to memorize these identities by writing them 10 times each. Because if you forget these identities, then you lose marks straight away. There is no other way to, get the marks without remembering the identities. So तुम्हारे जो questions होंगे, they will be based on these identities. Second identity of the first part, it is x plus a into x minus b. तो ये हो क्या रहा है, कैसे ये आइडेंटिटी, कैसे फॉर्मूला कैसे बन रहा है यहां से? हाउ डिड दिस फॉर्मूला बिकम? जस्ट सी व्हाट वी आर डूइंग. वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग दीज टू ब्रैकेट्स. तो हम ये दोनों ब्रैकेट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? पहले मैं x लिखता हूं, विच इज दिस x. फिर मैं पूरा सेकेंड ब्रैकेट लिखता हूं x माइनस बी. फिर मैं लिखता हूं प्लस a विच इज ओवर हियर, and then I write the whole second bracket x minus b. So if you multiply, you get x square minus xb plus ax minus ab. मैंने क्या किया, ये x को इस x के साथ मल्टीप्लाई किया, I got x square. फिर मैंने ये x को b के साथ मल्टीप्लाई किया, I got माइनस xb. फिर मैंने ये a को x के साथ मल्टीप्लाई किया, I got ax. फिर मैंने ये a को माइनस b के साथ मल्टीप्लाई किया, तो I got माइनस ab. ठीक है? तो तुम बोलोगे हाँ यहाँ तक तो बहुत इजी है, तो आइडेंटिटी कैसे बनेगी? बहुत इजी है. आई एम जस्ट अगेन राइटिंग इन द रेड इंक. सो दैट्स द फाइनल आइडेंटिटी विच यू हैव टू रिमेंबर. एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा b माइनस ए, b माइनस ए माइनस बी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर a माइनस बी लिखोगे तो ये बाहर की साइन प्लस हो जाएगी, माइनस ए बी. ठीक है? और करके इसका सेकेंड वर्जन भी लिखता हूं, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, अंदर बचेगा a माइनस बी और यहां पे आएगा माइनस ए बी. ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. सो यू रिमेंबर एनी वन ऑफ देम विच एवर इज एप्लीकेबल. जो भी तुम्हें याद रहता है याद करो, दोनों करेक्ट है. आदित्य किधर था रे? तू गेम खेलना नहीं भूलता, मेरा क्लास भूल जाता है. हाँ? ठीक है. Are you guys writing this?
It's okay, no problem. Are you guys writing this? So you have to write this. This is the question, or this is the format in which question will come to you. एंड उसके बाजू में इज इक्वल टू के बाजू में जो लिखा है मैंने, दैट इज इट्स एक्सपांशन, दैट इज द फॉर्मूला। आई मीन दैट इज द दैट इज हाउ यू नीड टू एक्सपांड। ठीक है, तो ये सेकेंड आइडेंटिटी है, सेकेंड फॉर्मूला है, और उसका एक्सपांशन यहाँ पे। सो रिमेंबर दिस और रिमेंबर दिस, बोथ आर सेम। ओके, लिखा सबने इतना? मेरे साथ साथ लिखो प्लीज। सॉरी, Aditya, did you write the yesterday's task which I gave you, all the identities 10 times? I can't hear you. You are on mute. Okay, the third one, x minus a into x plus b. So this will be x square. अच्छा, अब क्या होगा? X will get multiplied with x, you get x square. Then x will get multiplied with b, you get bx. Okay, then a will get multiplied with x, you get minus ax. Okay, now if you take out minus outside, so inside what you will get? Inside you will get a minus b, a minus b, and minus a times plus b is minus ab. So x square minus x bracket a minus b minus ab. That is the third formula. Either you can write this way, or you can write x square plus x bracket b minus a minus ab. ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. दिस इज द थर्ड फॉर्मूला. दिस इज द थर्ड फॉर्मूला. And the fourth formula is x minus a, x minus b. ठीक है, so you get x square minus x bracket a plus b plus ab. X square minus x bracket a plus b plus ab. This is the fourth formula. ठीक है, so total चार formula first part में. There are 4 formulae. इसको तुम्हें लर्न करना है, मेमोराइज करना है. अगर तुम मेमोराइज नहीं कर पाए तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे. अभी मैं तुमसे पूछूंगा सबसे, एंड वी विल सी वेदर यू विल बी एबल टू सॉल्व और नॉट. शुभ, प्लीज ऑन योर कैम. शुभ, शुभ प्लीज ऑन योर कैम. कैमरा एडजस्ट करो ठीक से. डन. ठीक है, इतना लिख लिया. चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सी, आई नो इट इज लिटिल बिट ट्रिकी टू रिमेंबर दीज आइडेंटिटीज, बट इसको तो तुम सॉल्व भी कर सकते हो मल्टीप्लाई करके. तो सीधा रट्टा मारना अगर नहीं जमता है तो सॉल्व करके याद रखो. ठीक है, लेकिन तुम्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला या आइडेंटिटी है ये किसके साथ मैच करती है. कौन सा क्वेश्चन कौन सी आइडेंटिटी के साथ मैच करता है वो बहुत ज़रूरी है. तो वो मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ. आई विल एक्सप्लेन यू विथ एन एग्जाम्पल. ओके,
So let's take the first example. Okay, who will help me with the first example? The first example is x plus 2 ब्रैकेट x plus 5. तो क्या बोलेंगे तुम्हें क्वेश्चन में? फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट या फिर एक्सपांड. क्वेश्चन में क्या बोलेंगे? फाइंड द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करो, या फिर एक्सपांड करो, है ना? तो हमें आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी इसके लिए. अब let's start with Tanish. Tanish, do you see all these four identities? You might have written them in your book, right? Can you tell me out of these four identities जो हमारा क्वेश्चन है, ये कौन सी आइडेंटिटी के साथ मैच करता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? वेरी गुड, वेरी गुड. योर आंसर इज करेक्ट. द फर्स्ट आइडेंटिटी. ओके, ओके. अनुश्री, अनुश्री, वी हैव टू अप्लाई द फर्स्ट आइडेंटिटी. ओके, ठीक है. यू हैव टू ऑप्शंस. You can expand and multiply, or you can directly apply identity. What would be easy for you? तेरे को एक्सपांड करके सॉल्व करना है या तेरे को डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करनी है? आइडेंटिटी अप्लाई करेगी तो कम स्टेप्स में होगा, एक्सपांड करेगी तो थोड़ा लंबा जाएगा. बट कम स्टेप में अगर करना है, आइडेंटिटी अप्लाई करनी है तो लर्न करना पड़ेगी. आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए. So which way would be easy for you? Expanding or applying identity? Wow, okay, perfect. So Anushri has decided that she will apply the identity. Okay, Anushri. So the identity is this one, the first one. The first one over here. तो जैसे A और B है ना तेरे आइडेंटिटी में, वैसे तेरे क्वेश्चन में A और B की जगह पे कौन है? 2 and 5. मतलब A की वैल्यू क्या है? 2 और B की वैल्यू क्या है? 5, है ना? तो what you have to do is जब ये क्वेश्चन दिखता है ना तुम्हें, तो पहले तो आइडेंटिटी लिख दो. ये सबके लिए बोल रहा हूं मैं. एवरीबडी विल फॉलो these स्टेप्स. तो पहले तो आइडेंटिटी लिख दो. x plus a x plus b is equal to x square plus x ब्रैकेट a plus b प्लस ए बी. सब लोग ये लिख देंगे. ठीक है, आइडेंटिटी लिख दी. अब क्या करना है तुम्हें? क्वेश्चन लिखना है, दैट इज x प्लस 2 ब्रैकेट x प्लस 5, और सेम चीज कॉपी करनी है. सिर्फ एक ही ध्यान रखना है, ए और बी नहीं लिखना. ए की जगह 2 लिखना, बी की जगह 5 लिखना. अनुश्री, प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई राइट? x ब्रैकेट 2 प्लस 5. x तो लिखना ही है साथ में. x के बाद ब्रैकेट, फिर 2 प्लस 5, फिर प्लस. वेरी गुड, 2 इंटू 5. ए बी का मतलब होता है a टाइम्स b, a मल्टीप्लाइड बाई b. कुछ लोग लिख लेते हैं a b मतलब 2 5 मतलब 25 कर देते हैं. वो गलत होता है, ऐसा नहीं करना है. वेरी गुड अनुश्री. नाउ व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट? Perfect. Very good. X square plus 7x plus 10. So this is your final answer. This is the expanded form. Expanded form, and you have expanded using an identity. So this is how you use identity. समझ में आया सबको? This is how you use an identity. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि स्टूडेंट्स डू नॉट रिमेंबर आइडेंटिटीज. तो कैसे यूज करेंगे? कहीं कहीं पे तुम एक्सपांड कर सकते हो, बट देन इफ द identities are complex, if the question is complex, then expansion becomes difficult, right? Let's go to the next question. I hope everyone has written this one. सबने लिख लिया ये? इजी था ये? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Tanush, how would you like to solve this? Are you good with memorizing identity or you would like to expand directly? Okay, so identity will be x minus a bracket x plus b. Can you tell me what is the identity? X square a minus b. Are you sure a minus b? Yes, yes, correct. X square plus x bracket a minus b minus ab. Let us once confirm here. I have okay x square plus x bracket a गलत है. X square x minus है x plus b है ना. X square plus x bracket b minus है आना चाहिए. तो ये अगर होता है ना तुम्हारे साथ, if you do not remember the correct identity, then better you expand it normally. ठीक है, so here the identity was wrong, so it's better that we will expand it normally. ठीक है, तो नॉर्मली कैसे एक्सपांड करना है वो भी देख लो, सब लोग देख लो. तो मैं क्या करूंगा, पहले x लिखूंगा, फिर x प्लस 7 लिखूंगा, फिर -3 लिखूंगा, फिर से x प्लस 7 लिखूंगा. मतलब मैंने क्या किया, आई मल्टीप्लाइड x with x and 7, then I multiplied -3 with x and -3 with 7. ठीक है, okay. So x into x will be x square, x into 7 is plus 7x, -3 into x is -3x, -3 into 7 is -21. This will become x square plus 4x minus 21. You get answer in 3 steps here also. और इसमें एक बेनिफिट है कि तुम्हें ज़्यादा मेमोरी का यूज़ नहीं करना पड़ेगा. तो मैं अभी बता रहा हूँ तुम लोगों को, डोंट pressurize yourself to memorize these identities of part 1, specifically part 1. part 2 part 3 में जो identities आएंगे उसके expansion का option नहीं है, you have to go through identity. but ये वाला जो part है ना, इसमें तुम directly expand करोगे तो कोई problem नहीं है, without identity, without memorizing. ठीक है, next question, who will help me? Next question is t by 2 plus 6 bracket t by 2 minus 3. Okay, so we are going to use the method of direct expansion, not applying identity. You can apply identity, it is your wish, but I would prefer that you directly expand. Chalo, Siddharth, can you please help me? How do we expand this? मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में जो किया है वही करना है. If you do not know, tell me, then I will teach you. I will again show you. You want to learn, but remember that next time after this, it's done. You should be thorough with it, okay? You should be able to answer. So सबसे पहले क्या करना है? I need to write this term. Okay, this is the term I will write first, t by 2. Wait, my friend, wait. There is no hurry. Are you obsessed with the answers? Then it is better that you just look at the answer and directly write it. I am obsessed with how to solve. Siddharth does not know how to solve and he has to learn. Okay, t by 2 लिख दिया, उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट लिखना है, the whole bracket here. ठीक है सिद्धार्थ? So I am going to write t by 2 minus 3. ठीक है, इतना समझ में आया?
अच्छा, फिर मैं लिखूंगा +6, सो आई एम गोइंग टू राइट +6 हियर, और फिर से सेकेंड ब्रैकेट t/2 -3। तो मैंने क्या किया, मैंने t/2 को ये दोनों से मल्टीप्लाई किया 1/1, और फिर मैंने +6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया 1/1। समझा? अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, चल अभी तेरे को थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा मुझे। t/2 टाइम्स t/2, डू यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई t/2 टाइम्स t/2? सिद्धार्थ मेरे को बता, t टाइम्स t कितना होता है? t टाइम्स t, सॉरी, वेरी गुड, t² अपॉन 2 टाइम्स 2 4, सो दिस विल बिकम t²/4। अच्छा, अब ये जो t/2 है ना, उसको अब 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो आई एम राइटिंग हियर सेपरेटली t/2 टाइम्स 3। कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, ये जो 3 और t मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इट विल बिकम 3t, 3t/2। ठीक है, सो -3t/2, -3t/2, करेक्ट or not? Yes. Okay, now I have to multiply 6 with t/2, plus 6 with t/2, plus 6 times t/2। क्या आंसर होगा सिद्धार्थ? 6t/2, very good। So this will be plus 6t/2, and finally I have to multiply 6 times -3। Yes Siddharth, sorry, -18। 6 टाइम्स -3 इज -18, साइन मत भूलो, साइन भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, नाउ आई कैन ऐड द लाइक टर्म्स, जस्ट अ मोमेंट। हेलो, गुड इवनिंग, या प्लीज टेल मी। यस, Doubt is not really a doubt. In the last example, the question was x minus 3, x plus 7. या, But I think we solved it from the raw identity. आई डिड नॉट यूज एनी आइडेंटिटी, I just expanded it. So I will get the absolutely correct result, because in expansion you are not using any shortcuts. So the result, the identity which you are using, it might be wrong, because this has been solved without identity. That means the answer is correct. But the identity I said was x square plus x a minus b bracket and minus ab, right? Hmm. It's in the third point, x minus a and x plus b is equals to x square minus x and a minus b minus ab. So this is the property and it was the cylinder, right? No, you told me a minus b. Actually, it is b minus a. If you write plus x outside. Yeah, that was the mistake. Anyways, now let us get back to this like term thing. So you see, here we have t square, that is the variable. In algebra, variables play very important role. Here the variable is t, here the variable is t, and here there is no variable, just a number which is a constant. तो यहाँ पे कौन से दो टर्म्स ऐसे हैं जिनको ऐड कर सकते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। We can add this term 3t/2 with 6t/2. Remember, we can add these two terms. We cannot add this term with anything, we cannot add 18 with anything, but ये जो बीच वाले दो टर्म है इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, इफ यू रिमेंबर, वी हैव subtracted 7x and 3x, 7x minus 3x we have written 4x। वैसे ही इस क्वेश्चन में we can solve it further। Okay, so let's solve this one। we will get t²/4, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे -3t प्लस 6t द होल अपॉन 2, -3t प्लस 6t द होल अपॉन 2, -18।
सो टी स्क्वायर बाय 4 और ये हो जाएगा -3t + 60 विल बी +3t, सो +3t अपॉन 2 -18. This is your final answer. This is your final answer, and I have the solutions in front of me. T square by 4 plus 3t by 2 minus 18. So our answer matches. And the steps are in front of you. ठीक है, मैं तुम लोगों से करवाने वाला हूँ एक एक क्वेश्चन, याद रखो. आई एम गोइंग टू आस्क यू गाइज टू डू इट. ठीक है, सो बी रेडी विथ इट. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. C plus 2 bracket C plus 3 by 5. Aditya, help me. Yes, sir. So we'll take from the first bracket, we'll take the C, and then yeah, and then we'll multiply it, and then we'll multiply by C plus 3 by 5. 3 by 5, sorry. Yeah, yeah, 3 by 5. Uh, uh, and then it will be, and then the next step will be to take the 2 Plus and 2. yeah, plus 2 and multiply by 3 plus 3 by 5. Very good. Siddharth, did you understand this step? Okay. Okay. Shubh. C will be multiplied with C first. C into C. Can you tell me C into C क्या होता है? Very good. C square. Shubh, C into 3 by 5. C times 3 by 5. It will be 3C by 5. It will be 3C by 5 plus 2 into C. Shubh, 2 into C. 2C plus 2 into 3 by 5. 2 times 3 6. 6 by 5. न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, so it will be 6 by 5. Rashi, are there any like terms? Rashi, are there any like terms? Okay, not just 3C but 3C by 5 and 2C. So we have to add them. Can we add them directly or we have to take LCM? Sorry? Okay, so here the denominator is 1. So 5 and 1, what is the LCM of 5 and 1? Okay, so here 1 will be multiplied, 1 5s are 5, here 5 will be multiplied. So C square plus 3C plus, what is 2C times 5? 10C. 2C times 5 is 10C, the whole upon 5 plus 6 by 5. So this will become C square plus 13C by 5 plus 6 by 5. This is the final expanded answer. छोटी छोटी चीज़ें हैं, एल्जेब्रा की छोटी छोटी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं. दीज आर वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स, और यहीं पे तुम लोग मिस्टेक्स करते हो, तुम्हारे फंडा क्लियर नहीं होते.
तो प्लीज पे अटेंशन एंड सीख लो इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज आरवी? ओके तनिष, 3a minus 8 bracket 3a plus 2. Forget the identities. Directly tell me how to expand. What is the first step? What is the first thing that we do in all the questions? इससे पहले सारे क्वेश्चंस में हमने एक ही चीज की है एक्सपांशन के लिए, सिर्फ पहले क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज किए हैं, बट इसके बाद इसमें 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 लास्ट वाले में क्या किया है हमने सेकेंड स्टेप में? Okay, so you are not able to put the steps in your words. I am telling you how to do it. What we will do is we will multiply both the brackets. How? We will take first term of the first bracket and multiply it with the whole second bracket. Then we will take the second term of the second bracket of the first bracket and then we'll multiply it with the whole second bracket. And how will it look like? So first we will write 3a. 3a के बाद मैं लिखूंगा सेकेंड ब्रैकेट 3a plus 2. Then I will write minus 8 and then again I will write 3a plus 2. Yes, can you tell me 3a times 3a is how much? Uh, 9a square. see, Tanish, 3a times 3a is 3a the whole square. ये बात सही है, 3a स्क्वायर नहीं होता है, 3a द होल स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है और a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर। सो द आंसर इज 9a स्क्वायर। क्या आंसर है? 9a स्क्वायर। अच्छा, फिर 3a टाइम्स 2, तनिष, 3a टाइम्स 2, 3a मल्टीप्लाइड बाय 2, वेरी गुड, प्लस 6a, प्लस 6a, ये प्लस की साइन है इसलिए डाल दी। अच्छा, माइनस 8 टाइम्स 3a, माइनस 8 टाइम्स 3a, ओरली करना है। Yeah, you have to multiply minus 8 with 3. Minus 8 times 3, minus 24a, minus 8 times 2. That's it, minus 16. Now tell me which are the like terms. Do you see any like terms? Here there is a square, and 16. Yeah, so the middle two terms are the like terms, 6a and 24a. Plus 6a and minus 24a. Can you add them? Plus 6a and minus 24a. Can you add them? So it is just plus 6 minus 24.
Okay, so the answer is plus 6 minus 24 is minus 18a minus 16. That's it. 6 और 24 को माइनस करना है मुझे सर. ठीक है, बड़े नंबर की साइन डालनी है. ए एज इट इज रहेगा, ए को डिस्टर्ब नहीं करना है. सो दिस इज योर फाइनल एक्सपांडेड आंसर. चलो अब एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को देता हूं, देखते हैं तुम लोग को आता है कि नहीं. ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल ऑफ यू, y square minus 1 times y square plus 4. एक्सपांड से करना है या आइडेंटिटी जैसे करना है. सॉरी, एक्सपांड करके करो, एक्सपांड करके. Sir, can I tell the answer? No, nobody will tell any answer. Okay, I think I have given enough time. Siddharth, please tell me the first step. Y square bracket y square plus 4 minus 4 Sorry, minus 1 minus. 1 Okay, bracket y square. okay. Next step, Siddharth, y square times y square. एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स याद करो, हमने किया हुआ है चैप्टर. Sir, y to the power 4. Y square times y square is equal to y raised to 2 plus 2, that is y raised to 4. जब दो एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लिकेशन में होते हैं और दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं. यू रिमेंबर? सो दिस इज, और सिंपली वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर वाई 4 ही होता है. ठीक है, यस. आगे 4y स्क्वायर, स्क्वायर है ना यहाँ पे. yes वाई स्क्वायर इंटू 4 इज 4y स्क्वायर. आगे बताओ. minus 1y square ओके, जस्ट वाई स्क्वायर, 1 नहीं लिखा तो भी चलता है. यस, आगे बताओ. प्लस 4 और माइनस 4? नो, माइनस 4. When you multiply this number minus 1 with plus 4, minus 1 you will multiply with plus 4, plus minus minus, the answer will be minus 4. Don't make this mistake, please. Which are the like terms, Siddharth? Like terms are the terms with same variables, same variable coefficient.
y square and y square. These are the like terms. Okay, if you do not know how to solve them, you can imagine it to be 1y square. So plus 4y square minus 1y square. Can you tell me how much will be the answer? Sorry? Sorry? Plus 3y square. Because bigger number has plus sign. Plus 4 minus 1 will be plus 3. Plus 3y square minus 4. Right? तनुष तेरे लिए एक दे रहा हूँ. So in this kind of questions are like, is it like compulsory to put it in an order? Yes, of course. What kind of order are you talking about? So an order means like first like for example, x square. So x square will come first and then You should always arrange the terms in the descending order of their power. That is always better. Yes, Tanush, can you please tell me how to solve this? sir, we'll start it with 2 Hmm. bracket 3 minus xy Okay. bracket close plus xy bracket open 3 minus xy bracket close, Okay. which will give us 6 minus 2xy for the first bracket plus 3xy minus x square y square for the second bracket. Okay. Anything else to be done after this? Yes, sir. 6 we take the like variables which will give us 6 plus xy minus x square y square. Should we leave it like this or should we rearrange it? We rearrange it to 6 minus square y square plus xy. Or minus x square y square plus xy plus 6. So variables come before our whole numbers. Yeah, variables come before the constants, and the highest power will always be the first. Yes, very good. Chalo. Let us do one more this type. करो, ट्राई करो तुम लोग पहले, देन आई विल एक्सप्लेन.
Good. Okay. Okay. Let's see how you have done it. Compare it with me. I will explain each and every step. Wherever you have made any mistakes or you're stuck, please learn and complete it. So I will first write 2a square bracket 3a square plus 2b square plus 3b square bracket 3a square plus 2b square. Okay, this will be 2a square multiplied by 3a square. So those who do not know how to multiply 2a square by 3a square, it's very easy. First you multiply the number. So 2 3s are 6. A square into a square I just discussed a raised to 4. एक क्वेश्चन में हमने किया था ऐसा. So this will be 6a raised to 4. Now 2a square times 2b square. 2 2s are 4, a square b square. So this will be plus 4a square b square. Okay, this will be plus 9a square b square. 3 3s are 9. B square into a square is a square b square. Plus 3 2s are 6. B raised to 4. 6a raised to 4. Acha. 4 plus 9 is 13. A square b square. Plus 6b raised to 4. क्योंकि ये मिडल वाले जो दो टर्म्स है दे आर लाइक टर्म्स, सो आई कैन ऐड देम. 4 plus 9 is 13. सिंपल. ए स्क्वायर बी स्क्वायर रिमेन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उसको टच नहीं करना है. सो दिस इज हाउ यू एक्सपांड. दिस इज हाउ यू एक्सपांड. यस आदित्य. नो नीड. दिस इज परफेक्टली रीअरेंज्ड. Did you all understand? This was the first part of this chapter. This is how you use expansions. Okay, ये हमने expansions पे कुछ questions किए अलग अलग. इसमें identities भी थी, but मैंने तुम्हें identities के अलावा भी direct expansion कैसे करते हैं वो बताया. Now I'm going to discuss some identities with you which are absolutely necessary for expansion. इनके बिना तुम डायरेक्ट एक्सपांशन नहीं कर पाओगे फ्रॉम हियर ऑन. अब आगे के लिए आइडेंटिटीज कंपलसरी हो जाएगी. और अब ये कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा बिकॉज अब
अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे सामने, तो तुम कैसे जज करोगे कौन सी आइडेंटिटी है, कैसे एक्सपांड करना है, कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है नहीं करनी है। सो फॉर दैट यू नीड टू पे अटेंशन, और जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मेमोराइज करो आइडेंटिटीज, वो तुम्हें करनी पड़ेगी। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट आइडेंटिटी which is a plus b into a minus b is equal to a square minus b square। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, किसी ने पहले देखा हुआ है ये फॉर्मूला, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, एल्जेब्रा का वन ऑफ द स्टार फॉर्मूला है ये। हैव यू सीन दिस फॉर्मूला अर्लियर? ओके, बाकी किसी ने नहीं देखा है कोई बात नहीं है, पहली बार तुम्हें ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है, प्लीज लिखो। तुम्हें होल स्क्वायर वाला लाइक a plus b होल हाँ स्क्वायर। वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, वो भी आएगा थोड़ी देर में, बट पहले ये वाला फॉर्मूला लिख लो प्लीज। दिस इज, मैं एक एग्जांपल भी दूंगा इसका साथ में, ठीक है। दिस इज एक, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो तुम्हें आगे तुम्हारे पूरे मैथमेटिकल करियर में जहां तक मैथ्स आएगा वहां तक ये फॉर्मूला यूज होगा। मतलब आगे नाइन्थ टेंथ, उसके बाद अगर मैथ्स लेते हो तो इलेवेंथ ट्वेल्थ, उसके बाद भी अगर मैथ्स होता है तो आगे भी ये चलता रहेगा, ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज होता रहेगा। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, x प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, सपोज तुम्हें इसको सॉल्व करना है, तो एक्सपांड मत करो, तुम क्या देखोगे, व्हाट विल यू सी, व्हाट इज द थिंग, वेयर इज द थिंग विच वेयर यू आर गोइंग टू यूज द विजुअलाइजेशन। सी द फर्स्ट टर्म, इट इज x in both the brackets, see the second term, it is 3 in both the brackets, also between these terms there is a plus and there is a minus, देर इज अ प्लस एंड देर इज अ माइनस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दो टर्म का सम और दो टर्म का डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है हमें। सो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? सीधा सीधा आंसर लिखना है, एक्सपांड नहीं करना है, सीधा आंसर लिखना है अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या बोलती है? तुम पहले फर्स्ट टर्म को स्क्वायर कर लो, फिर माइनस की साइन लिखो, और फिर सेकेंड टर्म को स्क्वायर कर लो। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 9। दैट्स इट। एक स्टेप में आंसर आना चाहिए, एक स्टेप में। अगर तुम एक स्टेप में आंसर नहीं ले पा रहे हो, मतलब तुम्हारा प्रॉब्लम, मतलब तुम्हारा प्रॉब्लम है, सीधा सीधा। और एक एग्जांपल देता हूं, और एक दे रहा हूं एग्जांपल। 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर ब्रैकेट 4x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। सिद्धार्थ, हाउ विल यू डू दिस? Do you see first term plus second term times first term minus second term? दोनों टर्म वही है, लेकिन एक में प्लस है एक में माइनस है, तो क्या करते हैं हम? डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है? जोर से बोलो, थोड़ा दम लगा के, थोड़ा दूध वूध पी लो, नहीं तो जोर से बोलो। या सो व्हाट इज a and what is b? Okay, so 4x the whole square minus 5y square the whole square, is it correct according to the formula? Yeah, tell me the answer. 4x square the whole square, what will be the answer? Sorry, what about, wait, my friend, what about 4? Will you not square 4 and will you not square 5? उनको भी तो स्क्वायर करना। 4 का स्क्वायर कितना होता है? सॉरी, जोर से बोल। हाँ,
थोड़ा माइक, हाँ माइक पास में रख, माइक तेरे दूर है शायद या वो पिकअप नहीं कर रहा है। 16x⁴ माइनस 25y⁴। शुभ, tell me this, how to solve this? Are you saying it properly? AB², AB द होल स्क्वायर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि दोनों को स्क्वायर करना है ना, A और B दोनों को। AB द होल स्क्वायर, हाँ आगे बोलो। 5², 5 अकेला है तो 5 होल स्क्वायर बोलो, या 5² एक ही है। यस, आंसर क्या होगा? AB² का स्क्वायर होगा A² B², दोनों को स्क्वायर अलग अलग करना है। यस, आगे। करेक्ट, बस खत्म हो गया यही। समझ में आया सबको? डिड एवरीवन अंडरस्टैंड दिस इजी आइडेंटिटी? दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट आइडेंटिटी, इजीएस्ट आइडेंटिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट दो आइडेंटिटी, और दो आइडेंटिटी बता रहा हूं मैं तुमको। नेक्स्ट आइडेंटिटी इज a plus b the whole square, which is a² plus 2ab plus b²। याद होगा ये तो, मतलब इतनी फेमस आइडेंटिटी है ये कोई भूल नहीं सकता कभी भी, है ना? दिस इज वेरी फेमस आइडेंटिटी एंड दिस इज यूज्ड एवरीवेयर। ये भी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट स्टार आइडेंटिटी जो आगे हमेशा यूज होने वाली है। 9th 10th 11th 12th हर जगह यूज होती है आइडेंटिटी है। a प्लस बी द होल स्क्वायर इज a² प्लस 2ab प्लस b²। कोई कोई उसको ऐसे भी बोलता है a² प्लस b² प्लस 2ab, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है। इसके बाद a माइनस बी द होल स्क्वायर इज a² माइनस 2ab प्लस b² which is a² plus b² minus 2ab। एग्जाम्पल 5x plus 4y the whole square। राशि, which identity will you use, the first one or the second one? Very good, tell me how to use it, how to expand directly without expanding. See the identity, 5x the whole square बोलो। प्लस I can't hear you Rashi। अच्छा, you will know this। ये जो a है ना, a उसकी जगह पे हमारे पास है 5x, और ये जो b है उसकी जगह पे मेरे पास 4y।
तेरे को सिर्फ रिप्लेस करना है, यू जस्ट हैव टू रिप्लेस। अगर तेरे को 2ab दिख रहा है, उसका मीनिंग मैं तेरे को बता देता हूं, इट इज 2 टाइम्स a टाइम्स b, 2 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b। ओके ओके ओके, बताओ। 2 इंटू 5x इंटू 4x, फिर यहां पे क्या है प्लस, तो डालो प्लस, फिर यहां पे क्या है b स्क्वायर, तो b की जगह क्या है 4y, 4y द होल स्क्वायर। एक्सपांड करो, इसको सिंप्लीफाई करो, 5x द होल स्क्वायर क्या होता है राशि? Oh, sorry, 4y. I'm sorry for that. Yes, Rashi, please expand this. 25 के आगे x का स्क्वायर होगा ना, x का स्क्वायर होगा 25 x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर। आगे बताओ। ये सब मल्टीप्लाई करो, 2 5 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, 40 xy। सही है? यस, आगे बताओ। प्लस करेक्ट है? इज इट राइट? ओके, चलो नेक्स्ट। आदित्य, 3x minus 7y the whole square. Yes, so sir, use the second identity. Yes. Yeah, so that will be a square. So 3x whole raised to 2. So that will be 9x. हेलो 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 हेलो, पहले पूरा लिखो। Oh, yes, sir. So then we'll write minus 2 into 3x into minus 7y. No, just 7y. Just 7y. 7y into Sorry? 7y. Sorry, so minus. अरे कहाँ से माइनस? यहाँ पे क्या लिखा है? Yeah, so that will be 7y raised to. सो रिमेंबर वन थिंग, ये जो माइनस की साइन है उसको a और b के किसी के भी साइन के साथ तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है उधर। तुम्हें a और b की वैल्यू विदाउट साइंस लिखनी है, पॉजिटिव ही लिखनी है। माइनस की साइन फॉर्मूला में जहां पे है वहीं पे लिख देनी। ओके, टेल मी 3x द होल स्क्वायर कितना होता है? ओके, Sir, 42xy ओके, plus 49y square सॉरी, plus 49y square. करेक्ट। अब मैंने सिर्फ ये आइडेंटिटीज को इंट्रोड्यूस किया है तुम्हारे लिए, ठीक है? इंट्रोड्यूस किया है, पूरा एक्सप्लेन किया है कैसे इसको सॉल्व करते हैं, अप्लाई करते हैं। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस बेस्ड ऑन दीज आइडेंटिटीज जो मैंने यहाँ पे अभी तक डिस्कस किए। तो इसकी जो होमवर्क या प्रैक्टिस वर्कशीट जो भी है वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँगा, एंड यू स्टार्ट सॉल्विंग देम, ठीक है? तभी तुम्हारी ग्रिप बैठेगी इस पे, नहीं तो ग्रिप नहीं बैठेगी, फिर रोते रहना आगे। क्योंकि ये सब शुरुआत है एल्जेब्रा की, कोर कॉन्सेप्ट है ये सारे, एक्सपांशंस एंड फैक्टराइजेशंस। वी आर डूइंग एक्सपांशन, अभी आगे फैक्टराइजेशन भी करना है। एक्सपांशन जब तक नहीं आएगा तुम फैक्टराइजेशन सीख ही नहीं पाओगे।
So we have just done expansions today. अभी भी एक्सपांशन बचा है, अभी तो थोड़ा सा और एडवांस एक्सपांशन है, बट ये जो बेसिक चीजें मैंने एक्सप्लेन की है आज, ये तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए. सो इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस वेल, तुम मेरा होमवर्क टाइम पे नहीं करोगे, तुम नहीं सीख पाओ. इसको प्लीज थोड़ा सीरियसली लेना, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, सो नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस टॉपिक, विल एंड इट नेक्स्ट वीक, राइट? Please do the homework properly. I will see you next week. Bye.